Good morning, 7th class. Hope so you all are good, fit and fine at home. और एग्ज़ाम अच्छे होंगे आपके. तो मुझे अब आज जो स्टार्ट कर रहे हैं हम, दैट इज द सिलेबस ऑफ यूनिट 2. ओके, 9th चैप्टर ऑफ योर बुक, respiration in organisms. Okay, today we are going to start 9th chapter of your book, that is respiration in organisms. Okay, Raze? Okay, so firstly, why do we respire? Firstly, what is respiration? What do you mean by respiration? Simply breathing. You all have listened the word breathing. Breathing meaning क्या होता है रज़े? Intake of oxygen. Breathing meaning intake of oxygen, get rid of carbon dioxide. That is breathing. Okay, but what is respiration? Respiration क्या होता है रज़े? Cellular oxidation of the food. The food that we take. First and second chapter we have completed nutrition in plants and nutrition in animals. उसमें what we have studied? We have studied about how food digested, how different components of the food digested in our body, like how starch, carbohydrate, fats, all digested in our body in simpler food, that is glucose. Okay, but how we obtain energy from the glucose? We obtain energy from the food when food is oxidized with the ऑक्सीजन. जब क्या है, फूड की रिएक्शन होती है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ. देन वी गेट एनर्जी एंड दैट एनर्जी वी यूज फॉर डूइंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, either for playing, either for study, either for doing any work, exercise, anything. Okay, so firstly, what is respiration, or why do we respire? Why do we respire? To get energy. We respire to get energy from the food. The basic concept is to get energy from the food. Food contains stored energy. Food contains stored energy. When we respire, the food is broken down in the cells of our body with the help of oxygen and energy is released. Simply respiration में क्या हो रहा है? The food is broken down in the cells of our body in presence of oxygen. Where from that oxygen comes? Breathing. We breathe now, we take oxygen, we get rid carbon dioxide. Meaning that oxygen is used for the breakdown of the food for releasing energy. Clear is it? Concept clear हुआ ना? The oxygen that we intake, that oxygen is used for breaking down of the food for releasing energy. We need energy for every work. That's why we respire. What is the need of respiration? Why do we respire? Simple thing. We need energy, and that energy comes from the food. When food is broken down in the presence of oxygen, so we respire for the energy. Okay, for getting energy. Now respiration की definition आ गई हमारे पास. Okay, what is respiration? वैसे तो I already cleared. Still, what is respiration? Respiration is a process by which food, simple form of the food, that is glucose, is broken down in the cells of the body. हमारी body के जितने भी cells हैं, glucose broken down in the cells of the body with the help of oxygen. With the help of oxygen to release energy. Right? Same thing है. Respiration is the process by which food, or you can say glucose, is broken down in the cells of the body with the help of oxygen to release energy. That energy we use for the various purpose, or you can say various activities. Okay, next respiration. Why we call this respiration cellular respiration? Because the food is broken down in the cells. Because the food is broken down in the cells of our body, that's why we call respiration as a cellular respiration. We call respiration as a cellular respiration. Okay जी. And the next is chemical equation. हमने photosynthesis किया था, वहाँ पे भी chemical equation की थी, इधर भी chemical equation है. All the energy is released from the food. Firstly, there is glucose in the
द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मेरे को पहले ही क्लियर है, मैंने ग्लूकोज लिख लिया, ऑक्सीजन लिख लिया, प्लस क्या लिख लिया, ऑक्सीजन। अब फॉर्म क्या होगा, एक तो मेरे को पता ही है क्या फॉर्म होगा भाई, एनर्जी। लेकिन एनर्जी के साथ क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। The carbon dioxide that we breathe out, that we exhale, that get rid out of our body, that carbon dioxide is released during the breakdown of the food. जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई उसे हमने क्या किया, ब्रीथ आउट। तो एक प्रोडक्ट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। दिस इज द वर्ड इक्वेशन, हमने वर्ड्स में लिखा हुआ है। एक क्या है हमारे पास, केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो जैसे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज, फूड क्या था, ग्लूकोज था ना हमारे पास। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, C2H2O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। कार्बन के नीचे कितना लगेगा, 6, ऑक्सीजन के नीचे 12, ऑक्सीजन के नीचे भी 6, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के नीचे क्या लगेगा, 6, हाइड्रोजन के नीचे क्या लगेगा, 12। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6 प्लस क्या लिखना है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, O2। वो बाद में देखेंगे बैलेंस करने में कितनी लगती है, आपको जनरल इक्वेशन लिखनी है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2 मीनिंग ऑक्सीजन। फॉर्म क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2, साथ में क्या है, वाटर दैट इज H2O, साथ में क्या है, एनर्जी को तो एनर्जी ही लिखेंगे। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द cellular respiration, or you can say the breakdown of the food in our body. Clear है, respiration की सिर्फ definition और equation cover होगी हमारी। नेक्स्ट हम देखते हैं types of the respiration. Now the respiration that takes place in the cells of our body, this respiration is of two types. First is aerobic respiration, the second one is anaerobic respiration. जैसे एन वर्ड बायो में कहीं पे भी आ जाए, एन का मीनिंग पता क्या होता है कि कोई ना कोई चीज क्या होती है, एब्सेंट होती है। एन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, एनीथिंग इज एब्सेंट, कुछ भी एब्सेंट हो, आप देखते हैं इधर क्या एब्सेंट है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, पहले वो डिस्कस कर ले। एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे पास होती है, इज द रेस्पिरेशन इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। Aerobic respiration meaning glucose is broken down in the presence of oxygen to release carbon dioxide, अभी हमने स्टडी किया था ना, water and energy. It takes place in most organisms. तो इसकी हमने इक्वेशन लिख ली, ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन मीनिंग प्लस O वाली O2 वाली, प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। फर्स्ट एड क्लियर होगी, ग्लूकोज इज ब्रोकन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या क्या रिलीज हो रहा है मैं बताऊंगी नहीं, आपको पता है। एनारोबिक, मैडम ने क्या कहा था, एन का मीनिंग क्या होता है, एब्सेंट, एनीथिंग इज एब्सेंट। एब्सेंट क्या हो सकता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों एब्सेंट हो सकती है भाई, ऊपर मैंने बोला ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो फिर कॉमन दिमाग लगाया, इधर क्या एब्सेंट होगा, ऑक्सीजन। इसका मीनिंग क्या होता है, ऑक्सीजन। एन मीनिंग नो, एब्सेंट। एरोबिक मीनिंग ऑक्सीजन। सो मीनिंग it is a type of respiration in which glucose is broken down in the absence of oxygen. Anaerobic respiration meaning glucose is broken down in the absence of oxygen. Okay, जैसे to release alcohol. अब मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन इज एब्सेंट, प्रोडक्ट चेंज हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखना हमने, जस्ट उसके साथ एक और चीज ऐड हो रही है, क्या, अल्कोहल। अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। लेकिन एक बात नोट कर लो, इस केस में जो एनर्जी सेक्रेट होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू दिस केस। इस केस में एनर्जी बहुत अमाउंट में सेक्रेट होती है। ओके, जैसे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने क्या कहा था कि जो ये वाली रेस्पिरेशन है एरोबिक, दैट टेक्स प्लेस इन द मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। व्हाट, दिस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन ईस्ट।
हमारे पास ही सेल्स होते हैं ना, उनमें होती है। अब हमने इक्वेशन लिख दी, ग्लूकोज ऊपर क्या लिख दिया, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बनेगा क्या भाई, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ओके रजे, इन anaerobic respiration, in our muscles cells, glucose is broken down in the absence of oxygen to release lactic acid and energy. बट रजे इन सम केसेस, जैसे हमने कभी जिम लगाया, हैवी एक्सरसाइज की, तो हमारी बॉडी की जो मसल्स होती है ना, वहाँ पे ऑक्सीजन की क्या है, डेफिशिएंसी हो जाती है। जितनी हमने रेस्पायर की थी 1 मिनट में, जितना हम सांस लेते हैं ना, उस अकॉर्डिंग डेली के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में हम लेते रहे। लेकिन मैंने हैवी एक्सरसाइज कर ली, जिम लगा लिया अच्छे से, तो क्या हुआ, जो मेरी बॉडी में एनर्जी थी सारी की सारी खत्म हो गई, ऑक्सीजन जितनी मैंने ली थी। तो जो रेस्पिरेशन हुई, जो फूड ब्रेकडाउन हुआ एनर्जी के लिए, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए ना जिम लगाने के लिए, तो मेरी बॉडी में ऑक्सीजन एब्सेंट हो गई। जैसे ही क्या, जो मेरी मसल्स थी उसमें क्या है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में फूड ब्रेक हुआ, किसके लिए, एनर्जी के लिए। तो मसल्स में क्या फॉर्म होगा जैसे, एक तो लैक्टिक एसिड, एक ही बात कर रही हूँ स्पेशली एक ही जगह की, ह्यूमन मसल्स की क्या फॉर्म होगा, लैक्टिक एसिड, प्लस हमारे पास क्या फॉर्म होगी, एनर्जी। इस केस में लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, 3 चीजें कर ली हमने। फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्म क्या हो रहा है, मैं बोर्ड क्लियर कर दूं फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। एरोबिक में क्या फॉर्म हो रहा है जैसे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किसमें रिएक्शन हो रही है, इस सेल्स में हो रही है। ग्लूकोज से क्या फॉर्म हो रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। हमारी मसल्स में, ह्यूमन की मसल्स में क्या फॉर्म हो रहा है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ, दैट इज लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। क्लियर है, तीनों अलग अलग क्लियर हो गई, इसमें कंफ्यूजन मत कर देना, उसमें उसके प्रोडक्ट लिख दिए तो गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। ओके रजे, तो अब हमने क्या क्लियर कर लिया, टाइप्स ऑफ द रेस्पिरेशन। रजे, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अब जो इसका मान लो आपको क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, यू कैन इजीली राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। थोड़ा सा आइडिया मैं ऐसे देती हूँ कि कैसे डिफरेंस लिखोगे। टेबल बनाया, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक का फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस साइड क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे रजे, एरोबिक में क्या होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। एनारोबिक में क्या होगा, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड। एरोबिक में हमारे पास क्या होगा, मोर एनर्जीज रिलीज्ड, एनारोबिक में क्या होगा, लेस एनर्जीज रिलीज्ड। ओके, इसकी इक्वेशन लिख देंगे, इसकी इक्वेशन लिख देंगे, जीरो इक्वेशंस। ओके, these are the differences between aerobic and anaerobic respiration. Okay, also you आप अच्छे से क्या है तो जो differences कर सकते हैं। उसके बाद मैंने रेस्पिरेशन तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। मैंने स्टार्टिंग की थी चैप्टर की ब्रीथिंग से, कि व्हाट इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग मीनिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, meaning oxygen rich air we intake in our body and carbon dioxide rich air we given out with the help of our respiratory organ, that is lungs and also respiratory system. Okay, so breathing क्या होता है, सिंपल प्रोसेस, you all know about it, फिर भी एक बार स्टडी कर देती हूँ। ब्रीथिंग क्या होता है, the process by which oxygen rich air we intake and carbon dioxide rich air is given out with the help of respiratory organs. Okay, Raze, the taking in of the air rich of the oxygen। अब हमारी बॉडी में कौन सी एयर इनटेक कर रहे हैं, रिच ऑफ द ऑक्सीजन। वो हमारे पास क्या होगा रजे, प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सॉरी उसे हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। और क्या है जो हमारे पास प्रोसेस होता है, हाँ जी, तो ब्रीथिंग में क्या है, द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर वी कॉल दैट इनहेलेशन, द गिविंग आउट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर वी कॉल दैट एक्सहेलेशन। इन मीनिंग बायो में इन वर्ड कहीं पे भी आ जाए, बायो में इन कहीं पे भी आ जाए, मीनिंग इनसाइड, किसी चीज को हम क्या अंदर लेकर जा रहे हैं,
ई एक्स वर्ड एक्स जहाँ पे भी आ जाए किसी चीज को बॉडी में से ऑट कर रहे हैं। क्लियर है जैसे दोनों टर्म्स। अब नेक्स्ट टर्म क्या दी हुई है उन्होंने, ब्रीथिंग रेट। ब्रीथिंग रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट। एक मिनट में पर मिनट हम कितने टाइम्स क्या है ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ करने का मीनिंग सिर्फ इतना नहीं ऑक्सीजन अंदर लेके, दोनों प्रोसेस साथ साथ चलेंगे, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। कितने टाइम सांस लेते और सांस छोड़ते हो आप, दैट इज अ ब्रीथिंग रेट। ठीक है, नंबर ऑफ ब्रीथ मीनिंग सांस लेते हैं जो पर मिनट, वी कॉल दैट ब्रीथिंग रेट। वैसे तो जो ब्रीथिंग रेट है हमारी क्या नॉर्मली रहती है, लेकिन सम केसेस में वो क्या है, जब हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वी नीड मोर एनर्जी, लाइक इन केस ऑफ एक्सरसाइज, इन केस ऑफ जिम, इन केस ऑफ अदर हम कह सकते हैं कोई हम वर्क कर रहे हैं, हैवी वर्क, वी नीड मोर एनर्जी, एट दैट केस आर ब्रीथिंग रेट बिकम्स फास्टर, क्योंकि हमें मोर एनर्जी चाहिए ना, तो हम क्या ज़्यादा ब्रीथ करेंगे तो ब्रीथिंग रेट अपने आप फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हो जो ब्रीथ, इसमें क्या हमारा पूरे का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी आ जाएगी। वैसे भी विल डिस्कस इन डिटेल इन नेक्स्ट क्लास, फिर भी एक हल्का हल्का सा हम क्या है इस पर भी एक व्यू लेते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, हाउ वी ब्रीथ, why knows the air that we intake in our body that enters in our body by the nostrils ना, जो नोज की दो नॉस्ट्रिल्स होती है हमारे पास, by the nostrils, nasal passage बोल सकते हैं। आफ्टर दैट देयर इज अ फेरेंक्स, लैरिंक्स जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है। फिर क्या एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, विंड पाइप, जिसमें से जो एयर है हमारी बॉडी में जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। कुछ नए नए नाम है ना, मैं चाहती हूँ आज ही ले दूँ ताकि कल तक आप इनसे क्या आपकी जान पहचान हो जाए। क्लास में कोई न्यू स्टूडेंट आता है ना, फर्स्ट डे आपको उसका नेम लर्न नहीं होता, सेकंड डे कर लेते हो, तो क्या है बस सेम ही है, आज आपको नेम बताते हैं, कल जो सारे आपका फ्रेंड सर्कल बने हुए होंगे आपको इनके नाम पता होंगे, मैडम नहीं बताएगी, आप लोग पहले बताऊंगी। नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स से आगे कौन सा पार्ट है भाई, फेरेंक्स, ठीक है, जो इधर हमारे क्या नेक में प्रेजेंट है। उसके बाद लेरेंक्स जो हमारा वॉइस बॉक्स है, जहाँ से वॉइस प्रोड्यूस होती है, ओके। फिर क्या है जो विंड पाइप आ जाती है, विंड पाइप क्या होती है रजत, जिसमें से एयर हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स तो सभी को पता है ना कि हमारा जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। हम स्केलेटन सिस्टम में देखा ना, लंग्स के अराउंड क्या प्रेजेंट होते हैं, रिब्स प्रेजेंट होते हैं ना, उसे प्रोटेक्शन देने के लिए। तो क्या है जो लंग्स तक क्या है जो एयर कौन लेके जा रहा है, एक विंड पाइप लेके जा रही है। उस विंड पाइप को हमने एक साइंटिफिक नेम दे दिया, दैट इज ट्रैकिया। उसका फुल नेम क्या है, ट्रैकिया, शॉर्ट नेम क्या था, विंड पाइप था, तो इसे अब मैं क्या बोलूंगी, ट्रैकिया। आगे जाकर ऐसे 2 लंग्स होते हैं ना, एक हमारी बॉडी की राइट साइड में होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है। अब जो दोनों साइड लंग्स में विंड पाइप तो एक थी, उसने जो एयर थी वो दोनों साइड देनी थी, सप्लाई करनी थी, तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक लेफ्ट साइड चली जाती है लेफ्ट लंग में, राइट साइड चली जाती है राइट लंग में। तो उसे जब से 2 साइड्स डिवाइड हो जाती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई के स्पेलिंग क्या है, BRONCHI। ब्रोंकाई इज प्लूरल, जब हम दोनों के लिए यूज करते हैं। अगर आपने सिंगल के लिए यूज करना है तो हम इसे क्या बोलते हैं, ब्रोंक्स। सिंगल के लिए यूज करेंगे तो ब्रोंक्स बोलते हैं, जब दोनों के लिए साथ में यूज कर रहे हैं दैट इज द ब्रोंकाई, मीनिंग दिस इज द प्लूरल फॉर्म। इंग्लिश में करते हो ना सिंगुलर प्लूरल। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जो ब्रोंकाई है वो आगे क्या है, ट्यूब्स में क्या है स्कैटर हो रही है, और फर्दर क्या है बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स बनती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एल्वुलाई। और जो एल्वुलाई है वहाँ से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चली जाती है, दैट सप्लाई टू ऑल द सेल्स। अब जो प्रोसेस है हल्का सा मैंने आपको बताया है कि जो पार्ट्स हमारी बॉडी में होते हैं, वी विल स्टडी इट इन द डिटेल इन नेक्स्ट क्लास। स्टिल रजे, इफ any student have any problem you can tell me right now, okay? Thank you.